Hey guys, welcome back to another episode of season 3 of Perception 101. Before we start with our episode today, I would like to thank everyone for helping me reach out to my first 100 subscribers in my YouTube channel. Thank you so much. So, this is the fourth episode of season 3, The Journey Aiming Wrong or Right. As I have said before, in this season, I'll be talking to people who have opted for unorthodox and unconventional careers, pursued it with all their efforts, and came out with something great. So, for today's episode, we have with us one of my old friends. She started out a venture named the Infuse Table during the pandemic. She actually wanted to start her venture after completing her studies, but Faith had planned otherwise. Her venture has had a great start nonetheless. So let's not waste more time and listen to the story of Muskan Bowri. Hi Muskan, welcome to Perception 101. It's great to have you for this episode. After knowing you for such a long time, seeing you start such a great venture where you are doing baking and cooking and different kinds of stuff, it's really an honor to have you on my episode. Thank you for coming. Thank you so much for saying such wonderful words about me. And also, thanks to you that you have given me this platform to showcase my talent. And because of you, many of people will come to know about my story and everything. So, Okay. and secondly, I really love your concept that you are doing right now. It is amazing. And you have motivated, I think, a lot of people, including me, because I listen Okay. it many a times. So yeah, you are doing wonderful job. Okay, thank you so much for those words, Muskan. It's actually you people who are helping me grow and come up with great ideas. क्योंकि अगर तुम लोग नहीं सुनेगा, तुम लोग का फीडबैक नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, I am stuck, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे. The same way I have seen you grow, the first day when I saw your page and everything. So let's start with an introduction. Let us give you the whole space right now to give your introduction. So firstly, I'm Muskan Bauri, and I have done my graduation from J.D. Birla College, Kolkata, in BSc Food Science and Nutrition Management. So I was like very much passionate about baking and cooking since I was in class 10, like, since my childhood only. So I have followed that in a way or the other, and right now I'm doing the same. I have a page named The Infuse Table, and I develop recipes. I am a baker, and I also like do some platters designing, like dessert platters and all. And whatever I'm doing, I'm happy right now. So this is what I'm doing. The last sentence that you just told, ki, Yeah. you're happy right now, that is more important Yes. than anything because we are at an age where everybody is kind of depressed or nobody is happy with what they are doing. Somebody is trying to find what they love. और वहां पे तुम अचानक से end किया है with कि हाँ, I am happy with what I am doing. So that is nice. That's nice to hear. So you told that childhood से ही तुमको बहुत अच्छा लगता था about cooking and everything. So what is food science basically? What do you learn in that? If you can, brief about that. Yeah, sure. So basically, see, I'll tell you from starting. Like, I wanted to do hotel management, so I opted for that only. I gave my exam, so I was selected in Chennai, like the IHM. I was selected there, but due to some reason, I wasn't able to go there. So then I came across this particular course, the BSc Food Science and Nutrition Management. So basically, this is all about food, like everything about food. Like I can go in any field that is related to food. So here we had a lot of option in bakery, in hospital, like as a dietitian, in industries, food industries, and many more. So I just went with the course. Like most of the people were like, यार आप कॉमर्स से निकले हो, जा रहे हो साइंस में, कैसे होगा? So I was like कि नहीं, Muskan, you don't have to listen to anyone. I have just selected my course and I was like, no, मैं तो करूँगी ही.
लेट्स सी अब जो होगा होगा आगे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. सो आई जस्ट स्टार्टेड. फर्स्ट सेमेस्टर मेरे लिए भी थोड़ा था डिफिकल्ट कि यार कैसे हो रहा है ये सब, बिकॉज थोड़ा साइंस वाइंस आ गया था उसमें. बट धीरे धीरे आई वॉज एबल टू मैनेज इट. लाइक धीरे धीरे यू विल लाइक, मतलब कभी कभी ऐसे मेरे को खुद को भरोसा नहीं हुआ. लाइक पहले आई वॉज सो मीडियोकर इन स्टडीज, बट आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई result was like CGPA was 9.3. I was like, oh god, this is my result. I was shocked. And the fun fact is that I was enjoying that course. Like we used to have our practical classes, including the theory ones, but practical में we used to do cooking. Like कभी 3 hours, कभी 6 hours. So उस बीच में ना we used to learn a lot of things, including bakery part. We used to learn bakery also, then normal cooking. We used to cook for like like all the patients, like little for patients we used to cook. That was included in dietitian part. And rather than that, we used to learn a lot of things. Like I have learned about science behind the food, जो इससे पहले मुझे नहीं पता था. इससे पहले I was just following my passion कि हाँ ठीक है ऐसे बनाते हैं ये करते हैं, बट उसके पीछे I did not knew कि हाँ साइंस भी होता है. So many of the things I came to know when I came into this course. So this is the thing that I loved about my course, जो मेरे को ज़्यादा और नॉलेज दिया. So और इसमें एक और चीज़ था जो मेरा सबसे बड़ा चीज़ था, that was my internship. Like we got our internship in last semester. We had to choose like where we want to do. We had the choice between hotel, hospital and industry. So obviously my first option was hotel. So I did my internship in this HHI Kolkata, that is Hotel Hindustan International. So I did there for 6 weeks, and I must say it was such a like wonderful experience. Like दोनों उतार चढ़ाव वाला एक्सपीरियंस यू से ना, लाइक वैसा. लाइक स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि कभी भी मैं एक पाव पे लाइक 12 घंटा नहीं खड़ी हुई हूँ कुछ काम करने के लिए. सो इट वॉज सच अ बिग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि लाइक कैसे इतने सारे चीज़ एक साथ मैनेज किए जाते हैं, बिकॉज वी वेर इंटर्न एट दैट टाइम. सो वो हमारे से ऐसा ही काम कराते थे जो ज़्यादा और प्रेशराइजिंग होता था. So we used to do like I used to report at the hotel morning 8 o'clock, and then होटल से हम लोग निकलते थे रात को 8 बजे. So पूरा like 12 घंटा का शिफ्ट पूरा चलता था. तो ऐसा था होटल के लिए like we used to wake up सुबह 6 बजे, because we have to get पूरा रेडी अच्छे से, एकदम बाल वाल टाइट करके जाना पड़ता था एकदम टिप टॉप होके. तो ऐसे जा रहे थे, और इसको करते करते हम लोग को 8 बजे तक, ठीक 8 बजे पहुंचना पड़ता था. एंड उस बीच में आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, एंड मेरे बहुत ज़्यादा लेग्स पेन होते थे. आई यूज टू टेक लाइक ऐसा हॉट वाटर में पाँव डुबा कर रखना और ऐसा करना ताकि मेरे को पेन में रिलीफ मिले. बट ये केस थोड़ा 1 वीक जितना था. उसके बाद I was like getting comfortable, used to हो रही थी. Then all over experience was amazing. I learned a lot of things. I did my work in bakery section, I did in continental, I did in Chinese section, Indian section, like basically every section. And also like when I was in bakery section, we used to make 2 desserts that we have to serve in the buffet section, in lunch and in dinner. So it was a big thing for me. Like we are serving people, like being an intern in a 5-star hotel. So really, like it was an amazing experience, I must say. The thing that you told me about, standing for a long time during your internship, I guess that's the Yeah. part where we learn. Because जब मैं भी internship कर रहा था, not in a hotel industry or something, but Yeah. कोई भी अगर मैं corporate job में भी अगर मैं हाँ. internship करता हूँ, corporate world में अगर मैं internship करता हूँ, तो you have to struggle. Because if you get comfortable in your surrounding, then you don't learn
आई डोंट थिंक सो यू कैन लर्न. एंड उसके बाद जैसे वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब वो स्ट्रॉन्ग फीट पे आते हैं ना कि हाँ अब हमको पता है कि कैसे क्या करना है, एंड आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, एंड वन स्टेप एट अ टाइम यू मूव फॉरवर्ड एंड यू रीच टू दैट पॉइंट. That is what is it's all about in internships. And the way you said it, HHI is being a very big hotel and learning from there and into different sections like continental Indian bakery and everything. That's great. But I really want to know how Infuse Table started. What was the whole purpose behind it, and what made you start this thing all of a sudden? Because I believe you don't wanted to start this all of a sudden. It was the pandemic that made you start this. Okay, so I'll tell you about this. So basically, I really had a plan for everything. So I did my course. Obviously, it was my plan to do so. And after that, also, I was about to do my diploma course in bakery section. Okay, like there are colleges that do your this bakery ka diploma. So I was about to go either Bangalore or Mumbai. So, but due to some reasons, then Corona, I wasn't able to go. एंड अभी तक आई एम हियर ओनली. सो उस बीच में इट वॉज लाइक कि पैंडेमिक चालू हुआ, पैंडेमिक चल रहा था एंड मैनी टाइम्स आई थॉट कि कुछ करना है. लाइक आई रियली वॉन्टेड टू डू कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज मेरा प्लानिंग के हिसाब से अभी तक आई वुड हैव स्टार्टेड बट इट वॉज गेटिंग डिलेड. So I was like, no, बहुत ज़्यादा हो रहा है. I want to do something. Like I just want कि एक स्टार्ट करूँ. देन आई वाज लाइक ठीक है, मैंने अपने पेज से रेसिपीज डालना चालू किया. लाइक मेरे अपने पर्सनल अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे. सो आई जस्ट यूज टू एड स्टोरीज. लाइक आई जस्ट यूज टू पोस्ट स्टोरीज रिगार्डिंग रेसिपीज. लाइक रोज अलग अलग रेसिपी आई यूज टू पोस्ट. सो जो रिव्यूज थे लोगों के, द रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग. everyone was loving it. Like they were loving the recipes I used to post. They were trying it. Everyone were like कि pictures click करके भेजते थे कि we have tried and it was really tasty और recipe was amazing. So I was like yes I can do it. Like मुझे पता चला कि हाँ सबको पसंद आ रहा है. So धीरे धीरे I was like कि why not I should open a page, like my own food page. सो काफ़ी फ्रेंड्स ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपना अलग से एक पेज करो. सो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने सोचा उस बारे में बिकॉज माई प्लानिंग वॉज कि मैं बाद में करूँगी आफ्टर माई डिप्लोमा कोर्स, नॉट राइट नाउ. बट देन आई वाज लाइक वेट करते करते तो पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा बिकॉज अगर उस टाइम नहीं करती तो अभी तक वेट ही कर रही होती. सो देन आई स्टार्टेड विथ माई पेज. आफ्टर दैट एक और चीज़ था कि मुझे फूड फोटोग्राफी नहीं आता था. और सबसे बड़ा चीज़ फूड ब्लॉगिंग में यू शुड नो हाउ टू डू फूड फोटोग्राफी, कैसे अपना फीड को एस्थेटिक बनाना है. सो मेरे को ये भी ऐसा था कि बहुत चैलेंजिंग था कि कैसे होगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कि हाउ दे विल रिस्पॉन्स, मतलब कैसा उन लोग का रिस्पॉन्स होगा. तो बट देन आई वाज लाइक नहीं, अब सोच लिया है तो किया जाए, धीरे धीरे आई विल लर्न. बिकॉज अगर मैं तब तक वेट करूँ ना कि मेरा परफेक्ट पिक्चर आए तब तक बहुत लेट हो जाएगा. सो आई जस्ट स्टार्टेड. आई वॉज मेकिंग रेसिपीज, आई वॉज अपलोडिंग इट एंड धीरे धीरे पीपल वेर लविंग इट. दे ऑल स्टार्टेड लाइक प्रिपेयरिंग इट इन देयर हाउस एंड धीरे धीरे इतने अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे. सब लोग वेट करते थे कि कब मैं रेसिपी डालूँ, तो लोग मतलब ऐसे एक्साइटेड होते थे कि हाँ अब रेसिपी आया, सो दे विल ट्राई इट. एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो मुझे बस मतलब जिनसे मेरा बात नहीं होता एंड दे वर लाइक दे जस्ट यूज्ड टू टेक्स्ट मी कि मुस्कान यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, वी जस्ट वेट फॉर योर रेसिपी कि कब तुम पोस्ट करोगे एंड वी विल जस्ट ट्राई इट आउट. सो आई वाज लाइक दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी कि यार ऐसा भी हो सकता है जो मैंने सोचा ही नहीं था कभी. सो ये करती गई मैं, मुझे और इंटरेस्ट आते रहा. आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मैनी कॉम्पिटिशंस. लाइक फूड ब्लॉगिंग में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं फूड के रिलेटेड ही, सारे फूड ब्लॉगर्स के बीच है. एक कुछ थीम दिया जाता है, उस थीम पे वी हैव टू कुक. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट. मुझे मज़ा आता था वो करके. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट बट
ऐसा होता था उसमें 200, 300, 500 ऐसे ऐसे लोग पूरा पार्टिसिपेट करते थे. तो आई नेवर केम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट मोस्ट लाइक 2-3 कॉन्टेस्ट में आई वॉज इन टॉप 10, टॉप 15. So it was really a big thing for me. It's okay, I wasn't first, second or third, but I was in top 10 or 15 between so many people, all like पूरे इंडिया में, like over the world India. So it's a big thing for me. So it was such a great experience for me again, and I learned a lot of things. अलग अलग तरह के लाइक डेवलप करना रेसिपी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना, मेरे आइडियाज़ और खुले. I was not in only one single thing. I was experimenting just because of this contest and all. And people also wanted from me the same thing, that I should do something innovative. So I followed that, and I was doing that only. And धीरे धीरे, I don't know when did it turned out into business thing. Like I will tell you, my first order, it was from my neighbors. Suddenly रात को 12 बजे they called me and they were like कि मुस्कान, I don't know, we are in lockdown and we just want to eat something very chocolatey and amazing, so I don't know, you have to bake something for us. ठीक है. So I was like, okay fine, I will do the same for you guys. Then next day only I prepared for them the chocolate tart cake. So they were like, they got crazy, completely crazy. They were like, oh my god Muskan, it's so tasty. And उन्होंने इतना ज़्यादा word of mouth फैलाया है उसके बाद. And उसके बाद धीरे धीरे I started getting orders. Yeah, I started from one, that was chocolate tart cake, and वही I was selling कुछ टाइम तक. उसके बाद जब रिस्पॉन्स आने लगा लोगों का, मैंने अपना मेन्यू बढ़ाया, मेन्यू में और चीज़ें लेके आई मैं, और अब जो चल रहा है वो उससे तो मैं बहुत खुश हूँ. रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग. मैंने सोचा नहीं था जो स्टार्टिंग में कि रिस्पॉन्स जो आएगा वो इतना, मतलब आगे जाके इतना अच्छा हो जाएगा. बिकॉज स्टार्टिंग में 12 डे की मेरे को लगा यार इतने बेकर्स है गुवाहाटी में, वाई वुड समवन टेक फ्रॉम मी. आई वाज लाइक दैट कि इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कैप्चर दैट मार्केट. बट राइट नाउ वेयर आई एम, I think that I have achieved a lot, like in comparison to that I have thought कि the thing that you said ना कि वो first step जब तुम लिया उसके बाद सब कुछ change होने लगा. From the recipe part, then making your own page, then taking your first order and the word of mouth. वो जब फैलने लग जाता है उसके बाद तो you can't wait to get more orders. And then you're so excited to even cook or bake or even do anything, like even if it's a photographer or anyone, even if it's me, I get something called up like you have to speak on a stage, और वहां से वो फैलने लग जाएगा. उसके बाद मेरे को और बुलावा आएगा. तो it is incredible. You have worked hard. You were somewhere where you didn't even know you wanted to start something like this that soon. You wanted to study more. You wanted to be perfect in your own thing. And then start again. But ये भी एक learning process है. हम deny एकदम भी ये चीज को नहीं करेगा कि you haven't learned a lot, because taking care of customers, the customer feedback, the taking care of your time, how to bake this, how to bake that, at what time it should be ready, thought process कि कैसे सब कुछ फटाफट ready होगा. It's a whole lot of thing that you have to take care of alone. That way you're doing it all alone. Yeah. So the one thing that I really want to know is that how did you come up with the name The Infused Table? Because it's a very catchy name. To be honest, मुस्कान तुम्हारा नाम नहीं आता है मेरे मुंह से. It directly comes The Infused Table, and some people directly know कि हाँ मुस्कान बावरी का बात हो रहा है यहाँ पे. It's a proud moment for you and for me as well, क्योंकि I know you are a friend of mine from a long time, and तुमको इस तरीके से देखे कि हाँ उसका जो वेंचर है उसका नाम इतना फेमस हो गया है कि नहीं उस लड़की को कोई जाने नहीं जाने, बट यस उसका वेंचर को लोग जानते. So that's why I want to know, how did you come up with the name? ये तो बहुत अच्छा चीज़ मेरा पूरा हो गया. देखो ये मोटिव यही था कि जाने लोग मेरे को मेरा वेंचर के नाम से. So okay, I'll come to the point.
सो बेसिकली मैंने पेज अपना चालू करने का मैं सोच रही थी, तब बहुत नाम सोच रही थी यार उस टाइम पे कि क्या नाम रखूँ। आई यूज्ड टू सर्च पूरा रात, मैं पागल हो गई थी उस टाइम पे नाम के पीछे। लिटरली मतलब मेरा एनी टाइम गूगल ऑन रहता था, या कोई बुक्स पे चलते रहता था, कुछ ना कुछ सर्च करती रहती थी, या कहीं भी कभी इंस्टाग्राम पे देखना कि लोग क्या कैसा नाम रखते हैं, कि व्हाट काइंड ऑफ दैट्स नेम्स द दे पुट। ब्रांड हाँ ब्रांड हो एग्जैक्टली, जाएगा वो। एग्जैक्टली। तो आई वाज कि एक बार में रखना है जो रखना है, आई डोंट वांट टू चेंज अगेन एंड अगेन। सो आई वांटेड एकदम एग्जैक्ट कि हाँ दिस इज माय नेम, यही मेरा नाम होगा। So I searched a lot. I even talked to one of my friend about this. So she also suggested me. I used to talk to her. I used to take advices from her. Friends play important role in your life. Okay, so I used to ask from her. I used to take advice. So she gave me a lot of advice. She also she's already doing blogging. So that's why I thought that she had an experience. I So actually know yeah, whom you are talking about. yeah, yeah, I know. So वो हम लोग का तीनों का ट्राई होता है एक टाइम पे। Yeah, that was true. Yeah, so basically she helped me a lot. So जब मेरे नाम में मेरे दिमाग में आइडियाज आ रहे थे, तो वो भी सोच रही थी, तो हम दोनों we used to discuss, and then I just gave her कि मुझे कैसा चाहिए, I wanted कि मेरा पेज ऐसा होना चाहिए कि whatever I put the recipes, it should be innovative. I don't want it कि आज एक normal pizza का recipe चाहिए, that you will get in YouTube also. तुम search करो pizza and you will get the recipe. But I wanted to do something different. Okay, I am giving the recipe of pizza, but in an innovative version, not the regular one. So this was my main motive to do. So धीरे धीरे we were thinking the name, and then I came up with the word infused. Infused, I came up with that word. So I just searched for that meaning. So basically my page included both the culinary thing and the bakery thing. So I was it was a mixture of both the things, culinary and bakery, because I am cooking That's also. infused. Yeah. That is infused. Yeah, because I wanted to do both of the things. I wanted to give recipes also, and I wanted to bake. I wanted to bake for my customers, Yeah, and I as a wanted to business. give them recipes. Yeah, so it included the mixture of both, the flavors of both. So when we mix the flavor of both the things, that is culinary and bakery, so that is infused. So basically my page is all about infused things. My page is basically my table, and infused is the culinary and bakery. So Okay, so the mixture, from that pizza example also I get it. Like you want to do it in an innovative way. So you are yeah, infusing something else with the pizza to make it something else and give that yeah, infusion to people. कि हाँ yeah, ये पिज्जा है but ये भी है. तुम कैसे बनाता हो वो तुम्हारे ऊपर. It's exactly, nice. The name is actually very catchy and people get it एक बार में कि हाँ you know it's infused. Something is there, something different is going to be there. That's why I reached out to you. I found your page very different from other bakers and other people who are doing something like this or something of the same sort. Because I have talked to one of the bakers in our episode. I have talked to one of the another baker who also she's also doing cooking as well, like you, but she is actually promoting food therapy. So that's the difference. That was catchy for me. Here, your whole prospect of doing things was catchy for me. So that way, I am, trying to get out with the whole thing of getting the concept of unorthodox things, so that people understand कि हाँ कुछ भी अलग होने से you can do that. You can have that click and start your own venture, and from that hobby you can earn, be happy, be content. एंड आई लव द फैक्ट कि तुम स्टार्टिंग में ही एपिसोड के बोल दिया कि आई एम हैप्पी. दैट इज इम्पोर्टेंट.
और कुछ इम्पोर्टेंट है हो नहीं हो, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. You told me that you wanted to, study more. You wanted to do a diploma as well. So I know that you will be doing someday, but उसके बाद क्या? Do you want, to start a bakery or your own cafe, or you want to, get your own workstation and start your whole thing in a big thing, as a big thing, और खुद का एक vlog अलग खोलने का, what do you want to do exactly? Yeah. So yes, I want to do my diploma and I will be going to do that. Like अभी बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है करने का, you are doing such a great job. But I was like no, मतलब मेरे को खुद के लिए करना है. I want to learn more because सीखने का तो कुछ वो फाउंडेशन है नहीं, कितना ही सीखते जाओ. this thing हम सीख गया है कि एजुकेशन के लिए चाहे कैसा भी हो, एज लिमिट नहीं होता. नहीं होता. I swear, I agree. So that's the thing for me also. I want to learn more, and after my diploma course, like basically अभी तक I am not, like my mind is not up to for opening a bakery or a cafe. I don't really want to do that. I just want to like learn more of the things, and then I want to like grow my business more. Like I want to like open, like right now I am doing from my home itself and I am doing alone. I don't have any helper who is helping me out or something like that. I am taking orders that I can do myself, the limited ones. So after learning, I want कि मैं अपना business और grow करूँ. I take like एक area जहाँ पे I can open my own studio or maybe a kitchen where I can work, like my own workplace where I can work, and I like it's my dream that I want to like design my own kitchen, like how it will be, everything. So there I can work. So us like a workstation or a area where I can click my pictures and all, like it should be like really beautiful. So वो वैसा मेरा एक ड्रीम है किचन को लेके कि वो वैसा पूरा बनना चाहिए. So right now I want that कि वो वैसा एक जगह हो मेरा जहाँ पे I can work अच्छे से, like not in my home, a different workplace. And थोड़े like अगर मेरा अच्छा जैसे रिस्पॉन्स अभी से अगर और बेटर होता है तो I can also like grow धीरे धीरे, like लोग I can take help from someone else also. I can keep some people with me. I will also teach them. They can help me out. Collaborating also is one option. You can collab with other people and everything. Yes. So basically you want to start a cloud kitchen type of a thing. जहाँ पे तुम्हारा खुद का workstation भी हो, तुम अपना reels भी बना सके, and you have your own set of things with you. किसी से कुछ भी वो नहीं और खुद का हो सब. हाँ, खुद का हो सब कुछ. I don't want to open a bakery or cafe because right now I am not sure about that. I just want to one step at a time. One step at a time. इतना ज़्यादा I'm not thinking. Because see, मेरा सोचने से अब तो मैंने सोच लिया है कि सोचने से कोई फायदा नहीं है, because मैंने जो सोचा था उससे बहुत उल्टा ही चल रहा है मेरा. ठीक है. तो दिख ही रहा है मेरे को, आपका भी साफ-साफ दिख रहा है that you have matured. दिख रहा है कि ये पूरा जर्नी तुमको मैच्योर किया है कि हाँ one step at a time is fine. ये नहीं कि हाँ डायरेक्टली फटाफट सब कुछ कर. यार बिकॉज इस चीज पे आई टोटली एग्री, बिकॉज मेरे को एकदम सीधा एग्जांपल मिला है. बिकॉज जैसे मैंने सोचा था कि हाँ आई विल कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एंड देन आई विल गो फॉर द डिप्लोमा कोर्स एंड देन आई विल कम एंड आई विल स्टार्ट माय बिजनेस, बट ऐसा नहीं हुआ. मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है. मैंने सेल्फ टॉट ही मतलब पूरा किया है अभी तक जो भी किया है, और उसी में मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, करती जा रही हूँ, वही चल रहा है. अब आई एम थिंकिंग कि हाँ अब मेरा वो करने में जाऊंगी, उसके बाद आई विल कम. उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हाँ आई हैव टू ओपन माई ओन वर्क प्लेस, आई हैव टू डू दिस, कि ऐसा किचन होगा मेरा, ये होगा वो होगा, बट यू नेवर नो. फिर से बोला जाता है यू नेवर नो. I agree. After the pandemic, if pandemic comes to my mind, the only thing that comes in my head after that is that unpredictability. जितना unpredictable world है आज के day, because it's not only you. Around me, I have around 10 to 12 people जो शायद मेरे close हो या फिर I have known them for a while. Like you, there are my friends
हाँ जिससे हम मिलता है, हाई बाय होता है, लाइक यू नो दे आर देयर. So ऐसे 10 to 12 people are there who have started their own ventures. They didn't want to earn at first, but then they started earning. And it's so like that feeling is so content, and it's so incredible to see people, you know, doing something else, something different. Because हम लोग जो सिटी में हैं, हम लोग जो स्कूल्स में पढ़े हैं, आई डोंट थिंक अपना माइंड सेटअप वैसा कभी रहा है कि इतना जल्दी ऐसा कुछ हम लोग कर सकेगा. Me starting a podcast was out of the blue. Nobody expected it around me. Nobody knew there is something like this that can be started. So I just did it. And I wanted to do it. I love talking about it. I love talking about things. तो हमको मन था, हम स्टार्ट कर दिया. इट वॉज अनप्रिडिक्टेबल. हमको भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ कभी स्टार्ट करेगा. पैंडेमिक हुआ, स्टार्ट हुआ. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही पैंडेमिक ऊपर नीचे था. दिस वाज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैपेंड, बट देयर वर अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल एज कंपेयर्ड. बट आई बिलीव pandemic was very good to you. So I would really like to know how you would describe your whole, you know, coronavirus pandemic situation 2020. 2020 डरावना लगता है, राइट? हॉरर आता है थोड़ा. किसी को भी लाइक लिटरली जो मीम्स नहीं है क्या, जो जिसमें दिखाते हैं कि अपने बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे जो ऐसे सर्वाइव किया है. 2020 एक्चुअली. फर्स्टली हाँ, तुम्हारा बहुत अनप्रेडिक्टेबल था. जब व्हेन आई सॉ कि तुम्हारा वो पूरा एडवर्टाइजमेंट जब चालू हुआ तुम्हारा पॉडकास्ट का परसेप्शन 101, आई वाज लाइक ओह गॉड व्हाट इज दिस, मतलब क्या आ रहा है. मतलब एक्साइटेड था जानने के लिए, बिकॉज जब तक एपिसोड नहीं आया था तब तक इट वाज लाइक कि सरप्राइज ना कि हाँ क्या होगा. सो धीरे धीरे जब आने लगा आई वाज लाइक यार ये कितना अच्छा काम है जो ये कर रहा है. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर यू. सो ओके, ऑल द बेस्ट. और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मेरे लिए फर्स्टली पैंडेमिक हम लोग को दिया गया था आई थिंक मार्च में, राइट? तो उस टाइम पे मेरा बर्थडे था 9 अप्रैल को. सो आई वाज लाइक पहले दिया कुछ 10 डेज के लिए, तो मैंने बोला ठीक है चलो खत्म हो जाएगा, मेरा बर्थडे बच जाएगा. बट देन उन्होंने तो और बढ़ा दिया. आई वाज लाइक शिट, मेरा बर्थडे खराब हो गया. मेरे को इतना बुरा लगा. बट ठीक है, पेंडेमिक में भी मनाया बर्थडे. उस टाइम पे केक्स भी नहीं मिलते थे बाहर से. घर पे मेरी मम्मी तो मेरे को छेड़ती थी कि यार अपना केक तुम खुद बना लो, खुद ही बना. मैंने केक मैं खुद नहीं बनाऊंगी, आप लोग कैसे भी बनाओ खुद ही बनाना, मैं खुद अपना केक नहीं बनाऊंगी. तो ये तो मेरा रहा बर्थडे जो मेरा पैंडेमिक में निकला, जो अच्छा था, बहुत अच्छा था. उसके बाद हमारा पैंडेमिक ऐसा गया कि रात भर आई यूज्ड टू सी मूवीज, कभी सीरीज, और कुक करती रहती थी, कभी मैं कभी मम्मी. खाते थे बहुत उस टाइम, तो क्या क्या नहीं बनाया होगा हमने. फिर बहुत खेलते थे फैमिली के साथ. I actually agree. जितना रेसिपीज हो सकता है दुनिया में सब कुछ बना लिया. आई एग्री. उस टाइम का तो वो तो भाई मतलब पापा लोग इतना एंजॉय कर रहे थे वो पीरियड. स्पेशली हम लोग तो चलो ठीक है, हाँ the kids were there, पूरी फैमिली थी. काफी साल बाद ऐसा हो रहा है, तो तो ये ऐसा चलता था. तो ये कितने दिन तक यही चला. उसके बाद धीरे धीरे आई वाज लाइक यार अब मेरे को ऐसा अंदर से कुछ होने लगा कि यार कुछ करना है. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यार ये एक रूटीन, मतलब कुछ नहीं कर रही हूँ प्रोडक्टिव. फिर मैं धीरे उस कॉन्सेप्ट पे आई कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, कि हाँ एटलीस्ट रेसिपी डालना चालू करूँ. तो वो चीज़ भी है ना, मैंने बहुत बार सोचा. सोच के मैंने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, मैंने ड्रॉप किया ये सोच के कि अरे थोड़ा वेट कर लेती हूँ, आई शुड वेट, मे बी सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए, सो देन आई विल स्टार्ट अच्छे से. द थिंग दैट आई थॉट कि हाँ अच्छे से इन द सेंस कि पूरा कोर्स करके देन आई विल स्टार्ट, वो वाला चीज़. बट देन मेरे को ऐसा लगा कि यार वेट करते 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 पार हुए जा रहे, लाइक 1 महीना पे 1 महीना, और ये खत्म नहीं हो रहा था. तब मेरे को एक हिट हुआ रियलाइजेशन कि ये ना ये नहीं होने वाला है खत्म, वेट नहीं करती हूँ, कर लेती हूँ. अब सोच लिया है तो लेट्स डू इट. देन आई जस्ट टुक माई फर्स्ट स्टेप, आई स्टार्टेड डूइंग इट. जैसे मैंने पहले बताया, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से डालना चालू किया. जब रिस्पॉन्स को मैंने देखा कि हाँ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तब मैंने पेज के लिए सोचा. एंड देन आई स्टार्टेड दैट
आई स्टार्टेड दैट, Whole मतलब thing. पेज वाला चीज़। हाँ, और पेज में भी ऐसा नहीं था, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मतलब हाँ, ऑब्वियसली मेरे साथ पैंडेमिक में ये बहुत अच्छा हुआ, लोगों को मेरा काम पसंद आया, मेरे को मोटिवेशन मिला और आगे बढ़ाने का काम को और अच्छी तरह से करने का अपने सब लोगों के लिए जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा था, लेकिन साथ साथ इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। स्पेशली मेरे लिए चैलेंजिंग होता था फोटोग्राफी करना, बिकॉज मेरे को अपना फीड को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता था कि बिकॉज फीड इज द थिंग दैट अट्रैक्ट्स सामने वाले को। लाइक पीपल सबसे पहले फीड पे जाएंगे, वो लोग देखेंगे कि हाँ कैसा लग रहा है। अगर तुम्हें अट्रैक्ट करेगा देन ओनली यू विल सी अंदर से कि हाँ अब मैं देखता हूँ कि कैसा है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज दैट। सो यू वोंट बिलीव, मैं फिर मूवी सीरीज छोड़ दिया था मैंने देखना। मैं रात रात भर आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, या फिर ना इंस्टाग्राम पे बहुत लोग ऐसे ट्यूटोरियल्स डालते थे फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, एंड ना फूड के ऊपर सारा, मतलब उससे रिलेटेड जो जो मेरे को सीखना चाहिए। सो बहुत मैंने देखना चालू कर दिया, पूरा रात रात भर आई यूज्ड टू सी। एंड धीरे धीरे ना मेरे को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने लगा। उसके बाद ना उस टाइम तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस आते ही थे, कोई ना कोई कुछ कोर्स लेते थे। तो आई डिड फोटोग्राफी कोर्स, लाइक वो एक मैंने वो कोर्स किया। उस कोर्स में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स था। तो वो एक मुझे एक्सपोजर मिला फॉर डूइंग माई फोटोग्राफी। तो उसके बाद आई स्टार्टेड एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग इम्प्रूव्ड उस फील्ड में। मतलब हाउ टू लाइक क्लिक पिक्चर्स, एंगल्स एंड ऑल, हाउ टू एडिट देम, लाइक हाउ शुड आई पोस्ट देम, कि कैसे फीड को मेंटेन करना है। सो वो मैंने ध्यान रखते हुए फिर करना चालू किया। तो उस चैलेंज से भी मैंने मतलब मैं बाहर आई, मतलब ऑब्वियसली उस पर मैंने वर्क किया तभी बाहर आई मैं, वरना नहीं आ पाती। हाँ, What would you actually rate it as? Like 2020 को कैसे rate करोगे आप अगर if you have to rate it from 1 to 10, 10 being the best, 1 being the worst, तो क्या आप rate करोगे, क्या नंबर दोगे? मेरे लिए तो 10 ही है। मेरे लिए तो एकदम भी खराब नहीं है यार। वो अब उस टाइम जो स्टार्ट किया था अभी तक वही मेरे पास है, जो और आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं उसको क्यों 9.5 भी दूं, मैं तो उसको 10 ही दूंगी। That is great. That is, I Because- am so happy to hear that. या बिकॉज चैलेंजेस ऑब्वियसली आते हैं, अभी भी आते हैं, ऐसे नहीं है, उस टाइम पे भी थे। जैसे मैंने बताया वो फोटोग्राफी एक मेरे लिए चैलेंज था। उसके बाद भी होते थे ऐसा कि हाँ मेरे को सोचना पड़ता था अब मैं क्या रेसिपी डालूं, बिकॉज पहले बहुत आइडियाज आते थे कि हाँ ये डालूं ये करूं। धीरे धीरे और सोचना पड़ता था। जैसे जैसे मैं एक एक रेसिपी डालती थी मेरा लेवल और ऊपर जाता था। तो कि नो, आई डोंट वांट टू डू समथिंग कि मैंने दिया एक रेसिपी इधर और एक को यहाँ दे दूं नीचे। तो ऐसा था कि नहीं, और ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। वो भी मेरे लिए खुद के लिए एक चैलेंज था कि कैसे मैं अपने आप को और ऊपर करूं और मतलब लोगों तक अपना नाम पहुंचाऊं। बिकॉज दैट वाज अ टाइम कि लोग को पता चला कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, रेसिपीज मतलब डाल रही हूँ करके। तो काफ़ी लोग नॉट ओनली गुवाहाटी से बट मैनी पीपल लाइक फ्रॉम तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, देन और भी लोग थे जो मतलब मुझे नहीं जानते हैं बट जस्ट मेरे काम से मेरे को जानने लगे एंड दे स्टार्टेड लाइक That is a proud following my moment. recipes. Yeah. That is a proud moment. So Yeah. that is something कि मेरे ऊपर भी एक है कि नहीं मुझे वो मेंटेन करके चलना है। हाँ, हाँ, तुम्हारा बेंचमार्क तुम खुद सेट कर रहा है, तुम खुद अपना बेंचमार्क को क्रॉस करता है तो एक नया बेंचमार्क हाँ। बनता है। उस बेंचमार्क के नीचे True. कोई आना नहीं चाहता। दैट्स ट्रू। करेक्ट। तुम्हारा क्लाइंट के सामने तो वही रह गया ना कि हाँ इसका क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले लोग क्वालिटी देखता है, इवन दो True. इट कैन यू कैन आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर ओन थिंग, बट सबसे पहले वो लोग क्वालिटी देखेगा, फिर Quality. पैसा से परखेगा, फिर उसके बाद क्वांटिटी पे आएगा। The Yeah, difference that's right. starts from the quality prospect. तो that is important. तुम जैसे बोला कि नीचे तो नहीं आ सकता, अगर ये बेंचमार्क मार्क किया तो इसके ऊपर या फिर इसके लेवल या तक चलना। इक्वल। हाँ, या true. तो वो that is important. बट हमको एक चीज जानना था क्योंकि हम
देखा कि after 2020 happened, mental health became a very, very big thing because a lot of things happened. You have seen the news, you have Yeah. seen how things were spreading here and there. Yes. But मैंने ये भी बहुत देखा कि when I started the whole season of mental health, when I did all the episodes for mental health, when I talked to a lot of people after the episode, I helped them, yes, to clear a lot of things, but काफी लोग open नहीं थे to share their story. Share in the sense, even if they are a bit stressed, even if they are a bit burdened or have some kind of pressure on themselves. I'm no one to diagnose depression or no one is leaving a psychiatrist or a therapist, but still अगर कोई है थोड़ा depressed वैसा लग रहा है उनको and they want to go for help and everything, कहीं ना कहीं if they open to their own friends, family और उसके बाद they go for therapy and everything, that helps. From you being actually being a businesswoman right now, you are that, you are a baker, you have started your own venture. I believe you have also had your own struggle with mental health during 2020. I'm not going beyond that because we are talking about your venture, nothing else. So I would really like to know if there was something like that and if you had to cope up with it with a certain way. So हाँ, उस टाइम तो बहुत न्यूज़ थे कि जो चल रहा था 2020 में, बट ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ही मेरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब था या बहुत मैं डिप्रेशन में थी, बट इट वाज कि हाँ, स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस था मेरे काम को लेकर। जैसे मैंने बताया कि कैसे होगा, क्या होगा, कि मैं क्या करूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ, क्या स्टेप रखूँ जो सही होगा। मतलब आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। एक साथ ना बहुत ख्याल आते थे, एक पे कि ना ऐसे, मतलब ये स्टेप बढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ये करूँ, मतलब समझ रहे हो कि ऐसा होता था। तो मतलब कितने बार ऐसा भी हुआ है कि मैं सोचती थी कि आगे बढ़ूँ, फिर पीछे आ जाती थी कि नहीं, रुक जाती हूँ करके। तो वो सब का बहुत स्ट्रेस था मेंटली। रात रात भर आई यूज्ड टू थिंक कि ना व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ, स्टेप आगे लूँ या नहीं लूँ। एंड इट वाज ऑल माय डिसीजन। व्हेनेवर आई यूज्ड टू टॉक टू माय मदर और माय फ्रेंड्स or any of the member of my family, everyone was very supportive. I will never say that they were not at all supportive. They were always supportive, and it was just that I have to take the decision. And that time इतना stress था कि I was not ready. I was like, मेरा planning कुछ और था, मैं करने कुछ और जा रही थी, वो भी बहुत जल्दी। So I was like, क्या करूँ, रुकूँ या कर दूँ। So वो एक मेरे पे उस टाइम बहुत बड़ा स्ट्रेस था, जो मेरे को मेंटली एक्चुअली रात रात भर हर बार मेरे को ये थॉट आता था। और उस वजह से लाइक मैं कितने देर सोची उस चीज़ को लेके, कितने वीडियोस देखी हूँ कि नहीं यार, मैं खुद को एक बार करना चाहती हूँ। स्टार्ट करने के पहले खुद को रेडी करना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं खुद रेडी होंगी तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगी। सो दैट वॉज द टाइम जब मैं बहुत सोचती थी उस बारे में। धीरे धीरे मैंने उसको ओवरकम किया, खुद को समझाया, थोड़ा वीडियोस देखा, थोड़ा किसी से बात किया या जो मेरे को मोटिवेट कर पाता, थोड़ा बहुत सजेशंस लेकर। उसके बाद आई वाज लाइक कि अब मेरे को खुद का डिसीजन खुद लेना है। फिर आई केम टू अ कंक्लूजन एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि हाँ, अब तो स्टार्ट करना ही है, पीछे मुड़ के लेकिन नहीं देखना है। अगर आगे बढ़ गया तो फिर अब पीछे नहीं मुड़ना। बट ऐसा हुआ एक बार, जब स्टार्टिंग में एक बार में रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, किसी का भी नहीं आता है। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि थोड़ा लो हो गई थी मैं, मतलब कि ना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अच्छा। जैसे कितने बार होता था कि एक पोस्ट पे ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया और वही नेक्स्ट पोस्ट मैंने डाला उसी कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं बहुत लो हो जाती थी कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ मेरे से गलती हो गया। तो ना वो उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता था कि अरे ऐसा क्यों, मतलब कहाँ मेरे से गलती हुआ। एंड आई यूज्ड टू सी दैट थिंग बार बार कि मैं पकड़ लूँ कहाँ मेरा गलती हो रहा है कि आई कैन इम्प्रूव इट, ठीक है, ऐसा। तो बट देन आई रियलाइज्ड कि ये ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट थोड़ा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी,
कि वो कैसा तुम्हारा साथ दे रहा है, ठीक है, और उसके लिए मेरे को पागल होने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है हाँ कि हाँ एक कभी एक पोस्ट बहुत अच्छा जाए, कभी एक नहीं जाए, तो दैट इज ऑल ओके। तो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट को मैंने मतलब मैं समझने लगी, उसको मैंने मतलब अपनाया कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता है, बट मेरे को नहीं रुकना है, आई हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। तो अगर उस टाइम पे मैं ज्यादा लो होके रुक जाती ना, तो अभी मैं जहाँ हूँ ना वहाँ नहीं होती फिर। महान, हाँ, आई एग्री। तो उस टाइम एक पॉइंट था जब मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ था, बट देन मैंने बिल्डअप किया उसको। मेरी सिस्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं उसको बोलती थी, उसको परेशान करती थी रात रात भर कि यार क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो शी यूज्ड टू टेल मी, दो वो मेरे से छोटी है बट स्टिल वो मेरे को समझाती थी कि इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड, करती जाओ तुम। सो आई जस्ट नीडेड दैट, वो वर्ड कि हाँ कि यू आर डूइंग गुड। तो वो सोच के Carry आई on. लाइक नहीं ठीक है, हाँ कि मुस्कान यू हैव टू डू इट, ये तेरा फोटे है, तेरे को ये करना पसंद है, तेरा पैशन है, एंड पैशन इज What I समथिंग, believe, या हाँ, कि पैशन इज समथिंग कि मतलब वो खुद से एक मन से किया जाता है, उसके लिए कोई तुम्हें पुश या फोर्स नहीं करता है। yeah, So I just followed that. He let's do it. We will see whatever happens. So I'm so happy to hear that, you know, you didn't have that much of a mental health or mental breakdown during the whole pandemic. Pandemic was really good for you. The itsy bitsy stress, थोड़ा सा lack of motivation हमेशा रहता है जब कुछ नया start करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो level of confidence भी नहीं रहेगा. That's my belief. और जहाँ तुम बोला कि your sister, your parents, your friends, everybody was supporting, everybody was trying to help you. तुम अपने आप को कितना push किया, and I am really happy to hear this from you because तुम खुद देखा है, हम खुद देखा है, there are a lot of people around us who have gone through so much worse, and they have been affected by mental health in such a bad way. वो लोग खुद कुछ स्टार्ट किया, किसी किसी का तो कुछ कुछ स्टार्ट किया हुआ, वो सब चला भी नहीं, like they started a venture and it didn't work out for them, and I feel bad for that. But coming from you who started something and believes that you are somewhere where you want to be, where you are happy right now, it's really good when people will hear your story. I am for sure they'll understand this, that mental health can be an issue when it comes to something like this, but you have to cope up, you can't give up, you have to keep going on. There will be times when there will be no motivation, there will be times there will be no feedback, there will be times when you won't get the accessibility to other people, but you have to keep going on. That's what happened with me also. Starting ka 2-3 episodes mein I had so many nice comments and feedbacks and everything from people, and uske baad gayab, like literally people stop. But then out of the blue, people who don't even know me, people who don't even understand, sorry, not actually understand, people who don't even know where I come from, they text me up on Instagram that मतलब इतने बड़े बड़े messages that you're doing so great, you're doing so amazing. वो एक मैसेज मेरा पूरा दिन बना देता था और चैन का नींद सोता था. Like it was I agree. ultimate. It was ultimate. When you also texted me a few times कि हाँ तुम समझ ऐसे कर रहा है, and you actually chatted with me about it. The main purpose of my podcast is not to change the perception of things. It's basically and actually just to make people understand that there can be a different perspective of different people, and हमको खाली वो कॉन्वर्सेशन करना है. तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, काफी लोग और के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, जबकि हम पॉडकास्ट में किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट सम अदर पर्सन इज टेक्सटिंग मी एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. हम आई वाज इन 9th, सीरियसली आई वाज 7th हेवन 9th क्लाउड, कहाँ पे था हमको पता नहीं. ये पर्पस फुलफिल हो रहा है यार. एंड इफ पीपल अराउंड मी आर अग्रीइंग टू और एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. And then one thing I would really like to say this, I would really like to say this, that I'm happy that your parents support you,
with whatever you are doing. They are very supportive and helpful to you. वरना इतना easy नहीं होता. I was about to ask you this question कि what do your parents think about it? It's really nice. You cleared it yourself. And तुम खुद से सब कुछ कर रहा है and it's really nice to be honest. And I am for sure people who will be listening to this, your friends, my friends, everyone around us, new people, they'll be very proud of you. You're doing a great job, Muskan. Keep doing that. Thank you. And please send me free gifts and free hampers when you can. Thank you so much. Sure, definitely. अच्छा. जल्दी पहुंचेगा Perception 101 के लिए. Sorry. Okay, One on this fun note, question. हाँ यार. I just want to say one more thing कि जैसा you said right now कि मेरे family मेरे को support करते हैं, right? So there are some people also जिनको नहीं support करते हैं, like for this particular like field. But so I just want to say one thing for them कि ऐसा नहीं है. Like I have a joint family, ठीक है? So starting में it was like I have done BSc Food Science and Nutrition Management. So कितने लोग को सुनने में क्या आता है? सिर्फ Nutrition Management. They forget about food science and they are like कि तुम तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की हो ना, तो why are you not getting into dietitian कि तुम डाइटिशियन वाले फील्ड में क्यों नहीं जा रही हो, न्यूट्रिशनिस्ट बनो, हॉस्पिटल में काम करो. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि पूरा कोर्स का नाम आप सुनिए, इट्स फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रिशन. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि it includes everything about food and उसमें बेकरी का भी है, सब कुछ है. That's why we get an option to do our internship in hotel also. So obviously my parents like my mom, dad, they are supportive obviously. मेरे family भी है, but कई family के members ऐसे होते हैं जिनसे ये सब मुझे सुनना पड़ता है कि they are like कि तुम हॉस्पिटल में काम करो, बेकरी क्यों कर रही हो. और एक दो लोग लिटरली ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि मैं बस पेंडेमिक में काम कर रही हूँ. दे आर लाइक कि अच्छा ये तो तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है, इसके बाद तो तुम क्या कर रही हो, ऐसा. Everyone has their own suggestion. सब कोई तो दुनिया देख चुका है, हम लोग तो अभी दुनिया में आया ही नहीं है. ऐसे और मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं सोचते हुए रह जाती हूँ कि यार ये बोल क्या रहे, मैं इसके बाद भी कुछ और करूंगी. मेरा तो लाइक तुम तो हमको बहुत खराब लगता है because you started your own thing. They should be proud and just that. Have like give an order and be okay. ठीक है, उससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं बोलना है ना, आपका सजेशन मांगा है. मेरा पेरेंट्स ओके है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सेम हमको काफी लोग बोला तुम क्या चीज के बारे में बात कर रहा है. People are not ready to talk about menstruation openly. Why? Sex education नाम का चीज नहीं है. मिसोजिनी का मतलब नहीं पता लोग को. People don't know what are stereotypes. तो हम क्यों बात नहीं करें ये सब चीज के बारे में? Actually, yesterday this thing happened with me. I was talking to a friend who needed therapy. Okay, she actually accepted the fact that yes, she needs therapy. So she wanted to talk about it and get a few numbers from here and there, or different kinds of therapists and psychiatrists, the rates and everything. तो हम उसको अप्रोच किया. फर्स्टली आई क्लियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम उससे चैट किया फॉर 1.5 आवर. उसके बाद हम उसके नंबर शेयर किया. दे डोंट इवन नो थेरेपी में होता क्या है या थेरेपी में एग्जैक्टली चलता क्या है, थेरेपी कैसे हेल्प कर सकता है. इट्स नॉट ओनली फॉर सैड पीपल और डिप्रेस्ड पीपल, इट्स फॉर हैप्पी पीपल एज वेल. कोई भी जा सकता है थेरेपी पे, किसी को कुछ वो चीज समझ में नहीं आता. And let's not go out of the box right now. Let's come back to okay. So, how do you handle the different kinds of feedbacks that you get from a lot of people? कभी कोई खराब फीडबैक हो सकता है, कभी कोई अच्छा फीडबैक हो सकता है, कभी फीडबैक ही नहीं आता. तुम जैसे भी खुद बोला कि कभी कभी काफी सारे पोस्ट में इतना एंगेजमेंट नहीं होता तो कभी लो फील करता है, या फिर you don't get that much orders someday or something like that. So how do you keep yourself up? That's what I want. That's all I want to know, because वो mental awareness, वो mental prepared रहना, mentally prepared रहना is important. So I want to know. Yeah. So देखो, firstly तो I never thought कि मेरे को इतने ऑर्डर्स मिलेंगे भी जो भी मिल रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो मेरे लिए यही
सोचना ही इट वॉज कि ना आई थॉट कि हाँ मुश्किल से दिन में एक ऑर्डर, वो भी हो सकता है कि आज मिले 2 दिन ना मिले और फिर 4th डे मिले. सो ये मेरा एक थिंकिंग था. बट देन ये थिंकिंग मेरा बीट हुआ अपने आप धीरे धीरे. इट वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, अब ऐसा है कि हाँ मेरा रोज़ का ऑर्डर आ जाता है. हाँ कभी ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा होता है कि हाँ आज मेरा आया ऑर्डर्स, आज मेरे कुछ 4 to 5 ऑर्डर्स आए और कल एक ही ऑर्डर आए. ठीक है, तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि है ना, जब ऐसे आने लगा मेरा ऑर्डर्स रोज 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 और सडनली एक दिन नहीं आया उतना, या एक ही ऑर्डर आया या बिल्कुल नहीं आया, तो हाँ मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे को लो नहीं फील होता था. लो फील होता था वैसे कि ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए बिकॉज मेरे को कुछ करना होता था. आदत हो गया था रोज की रोज करने का, काम करने का. मेरे को बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता था. ऐसा लाइक यार कुछ करने को नहीं है यार, कोई एक ऑर्डर तो आ जाए, कुछ बना लूँ, कुछ कर लूँ, ऐसा होता था मेरे को. तो मेरा ये चीज होता है. मेरे को ये नहीं होता है कि यार ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा तो कमाई नहीं हो रहा है. नहीं, आई स्वेयर. ये अच्छा लगा मेरे को काफी सुन के कि तुम्हारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि कम ऑर्डर आ रहा है. इट्स नॉट द मनी, तुम बिजी क्यों नहीं, तुम वो क्यों नहीं कर रहे जो तुमको पसंद है. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. ये मेंटालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. काम करो तो खुशी से करो, और जब काम नहीं मिले जिससे तुमको खुशी मिलता है तो तुम गुस्सा हो, तब तुम सैड हो, तो समझ में आता. इट्स नाइस. अच्छा लगा. एकदम ऐसे हो जाते थे यार, एक तो आ जाए, मैं कुछ बना लूं, कुछ तो बनाऊं. इतना इजी नहीं है ये मेंटालिटी लाना, लेकिन बट तुमसे आई डोंट नो, मतलब आई बिलीव पीपल विल हैव स्टार्टिंग से मेरा यही है. आई विल टेल यू, मेरा कभी ऐसा नहीं था कि अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं लालच में आ जाऊं और फिर ना मतलब सब अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लूं. अभी तक भी मेरा यही माइंडसेट है कि मेरा ये पैशन है. आई लव टू डू दिस वर्क. मुझे मजा आता है, मतलब मैं खुश रहती हूँ. इसीलिए मैंने कभी डाइटिशियन के लिए ऑप्ट नहीं किया. मैंने ट्राई किया था, आई टेल यू, मैंने ट्राई किया था. मैं गुवाहाटी आके हॉस्पिटल पे, यहाँ सनराइज हॉस्पिटल करके है एक डायबिटीज हॉस्पिटल, वहाँ मैंने 1 वीक के लिए इंटर्नशिप किया था, जस्ट टू ट्राई कि मेरा मन लगता है कि नहीं, कि आई वॉन्ट टू डू इट और नॉट. तो ट्राई किया, बट इट वॉज अ बिग नो. मेरे लिए वो नहीं था, मेरे को वो नहीं करना था. मैं खुश थी ये करके जो आज मैं कर रही हूँ, बिकॉज दैट वॉज समथिंग कि अगर मैं कर भी लेती ना, ठीक है मैं कर लेती, आई हैव टू डू अ जॉब कहीं कोई हॉस्पिटल में, बट वो है ना मेरे लिए ऐसा होता कि मैं धक्के मार के जा रही हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू डू इट. मेरे को 9 to 5 जॉब करना होता, चाहे तुम काम कर रहा हो नहीं. करेक्ट. तो बट राइट नाउ आई एम हैप्पी. चाहे मेरे को 1 ऑर्डर मिले, 5 ऑर्डर मिले या 10 ऑर्डर मिले, जितने भी मिले, मैं जिसके लिए बनाती हूँ ना, खुशी से बनाती हूँ, मन से बनाती हूँ. हम एक चीज तो मानता है, खाना बनाना और खाना खाना, both are the happiest things anyone can talk about. क्योंकि कोई लोग खाना बना के इतना खुश हो जाता है, और मेरे जैसा लोग ऐसा है कि खाना खा के बहुत खुश. तो I believe when it comes to food, it's happy. Like everything is happy. Yes. Food can never change. हाँ, obviously खाना खराब लगे तो बात अलग है, बट जब खाना टेस्टी होता है तो मूड बदल देता है, पेट भी भरता है, and then you know you have that happy vibe with you. You don't like to do anything else, and then you like to work and you like to do other things. So it's great when it comes to food. बहुत मजा आता है मेरे को ऐसे बात करके खाना वाने के बारे में. एंड रहा फीडबैक्स का बात, तो फीडबैक्स इज समथिंग कि हाँ, जैसे आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे से. मतलब काफ़ी लोग का मैसेजेस आता था, दे वर लाइक कि वाह यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. एंड धीरे धीरे जब मैं करना चालू की, तो मतलब कई लोग जैसे तुम्हारे साथ हुआ सेम, कि जिससे तुम्हारा बात नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट टेक्सटिंग यू इतने बड़े बड़े लिख के कि मैसेजेस. तो सेम मेरे साथ हो रहा था. एवरीवन वाज लाइक कि कोई एक जन ने ऐसा बोला कि मैंने ना एक रेसिपी बुक तैयार किया हुआ है कि तुम्हारा रेसिपी आता है और मैं लिखती हूँ. तो तुम सोचो वो मेरे लिए कितना बड़ा बात है. आई वाज लाइक ओह गॉड,
ये कितना बड़ा ये हम चीज लोग है। खाना खजाना आता था तब करता था क्या हाँ मेरा मम्मी? हाँ We used to do something. I used to see my mom used to do like, हाँ oh my god, that's so great. आई नो। काफी तो आई crazy. वाज लाइक कि यार ये तो क्रेजी है भाई, ऐसे भी हो लोग, मतलब ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे मेरे को पता तक नहीं था। और कई बार होता है कि जैसे मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया, कितने लोग होते हैं जो सामने से रिव्यू देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा या करके, कितने लोग नहीं भी देते हैं, कि कितने लोग का नहीं होता है या भूल जाते हैं या आदत नहीं होते हैं, जो भी है तो नहीं देते, और कितने लोग देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से देते हैं रिव्यू। तो वो मेरे को बहुत एक चीज़ है जो बहुत मोटिव, रिव्यू इज समथिंग दैट ऑब्वियसली मोटिवेट्स एवरीवन, कि हाँ ऐसा लगता है कि यस अच्छा कर रही हूँ और आगे बढ़ा सकती हूँ इसको। एंड खराब रिव्यू को भी एक लेना एक वो है। हाँ बैड रिव्यू का भी एक एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा हुआ था कि नॉट, आई विल नॉट से कि बैड रिव्यू, बट नॉट वो कि बहुत अच्छा वाला रिव्यू भी। वो एक बार मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया, मेंशन किया था कि आई एम वर्किंग अलोन, ठीक है, तो मेरे को उस टाइम एक प्रॉपर आइडिया नहीं था कि अकेले कितना ज़्यादा ऑर्डर्स आई कैन हैंडल बाय माई सेल्फ। ओके, सो दैट डे आई टुक मतलब थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर्स, मतलब ये सोच के कि हाँ ठीक है आई विल हैंडल। एंड देन क्या हुआ कि उस टाइम पे आई यूज टू डू ये तुम्हारा फूड प्लेटर्स एंड ऑल, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड थोड़ा। अभी तो आई डोंट डू दैट, आई फोकस मेनली इन बेकरी सेक्शन एंड रेसिपी डेवलपिंग पार्ट। सो उस टाइम पे आई वॉज डूइंग दैट। सो व्हाट हैपेंड दैट उस दिन जैसे बाकी सारे ऑर्डर्स सही गए थे, एक ऑर्डर ऐसा हुआ था उसमें भी एवरीथिंग वॉज फाइन, जस्ट एक दो कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया था। तो उसलिए लाइक सामने से जो रिव्यू आया था इट वाज लाइक कि है ना हाँ सब कुछ अच्छा था, बट उसमें ये दो कुछ गड़बड़ हो गया था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ कि है ना कि क्या हो गया मेरे से, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा होता है ना कि खुद पे गुस्सा आने लगता है, बट फिर मेरे को लगा कि ठीक है, बाकी चीज़ जो सही गया, जो नहीं गया उस तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वो गलती हो गया कि मैंने उस दिन ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कितना लेना चाहिए जब मैं खुद काम कर रही हूँ। उसके बाद से आई हैड मेक श्योर कि मैं उतना ही ऑर्डर्स लूँ जितना मैं खुद अकेले कर पाऊँ। एंड उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ वापस। What's the maximum Yeah. number of orders that you have taken in one day and been successful to deliver? या तो मैक्सिमम जो मैंने एक दिन में लिया है दैट इज, अभी जैसे प्लैटर्स जो उस दिन मैंने लिया था दैट वाज 5 प्लैटर्स, जो मेरा गलती हो गया था बिकॉज इट वाज फूड प्लैटर। एंड देन आई केम टू नो कि इट इज़ अ बिग टास्क, कि 5 प्लैटर अकेले इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सबका डिश अलग अलग होता है, सब कुछ होता है। तो उस चीज़ को मैंने एक मोटिवेशन की तरह ही लिया, ऐसे ही लिया कि हाँ मेरे को सीख मिला है, तो उससे मेरे को गिरना नहीं है कि उठना ही है कि हाँ ठीक है। मतलब एक बार बुरा लगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा, बुरा लगा, बट आई लाइक कि this is your wisdom talking right now, your experience talking. Really happy. ये एक्सपीरियंस है मेरा, बिकॉज देखो ऐसा कोई काम में नहीं होता है कि तुम्हें खराब एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। खराब एक्सपीरियंस यू ऑब्वियसली फेस इट। And गलती सबसे होता है, mistakes are meant to be there. एग्जैक्टली, और सेम मेरे से हुआ। सो आई वाज लाइक कि उस दिन मैंने ठान लिया कि ठीक है ये गलती हुआ जो हुआ, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू लाइक बी प्रिपेयर्ड कि नहीं ठीक है मेरा इतना ऑर्डर्स को ही आई कैन हैंडल, बट जो कर रही हूँ अच्छे से एकदम 100% दूँ, ज़्यादा लोड नहीं लूँ खुद पे। सो अब जाके फूड प्लैटर्स का तो ओवर हो ही गया है। अब मेरे साथ क्या होता है, केक्स वगैरह का आता है या डेजर्ट का ही रहता है, देन मेरा मैक्सिमम एक दिन में आई टेक अराउंड 5 ऑर्डर्स, तो वो आई डू आराम से। मतलब वो भी वैसा कि टाइमिंग का स्लॉट्स होता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि बहुत हाँ कि अगर सुबह 4 को एक साथ दे रही हूँ, दैट आई कैन डू। The thing that you are saying कि hectic भी नहीं और you know you are enjoying the work is exactly हाँ। Okay, so moving to the next question that I want to ask you is that you have had different kinds of experiences during the whole venture. अभी 8 months या फिर 9 months होने वाला होगा शायद, या स्टार्ट हो
आई स्टार्टेड अगस्त में रेसिपीज डालना, और हाँ तो बेकरी वही का अगस्त से काम ही मैंने तुम्हारा ये जर्नी सितंबर, नहीं चालू हुआ। सितंबर नहीं, नवंबर दिसंबर से बेकरी का चालू किया मैंने। हाँ वही हाँ। सो वही हम बोल रहे हैं कि हम्म अगस्त से तुम्हारा पूरा का पूरा ये चालू हुआ जर्नी। हम्म So what I want to know, or what I would like from you to come out, is that what kind of advice would you give someone if you had to give just one advice, someone who started, you know, has started something like this or is starting something like this, if they hear this whole episode, listen to it, तो तुम उनको क्या advice देगा? Just one advice. फर्स्टली हम एक यही एडवाइस देगा कि जैसे हम फॉलो कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें हम खुश है, मतलब उस सामने वाले को भी यही बोलेगा कि वही काम करो जिसमें तुम खुश है। लाइक इफ यू आर डूइंग, like you have your own page, you are a baker or maybe you are a blogger, so I'll just say कि हाँ ups and downs होता है, you will sometimes get bad reviews, sometimes you will get good review और sometimes मिलेगा ही नहीं, जो मेरे साथ भी होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया, एक एक्सपीरियंस दिया मैंने, तो वो सब से I'll just say कि उससे सीखो एंड जस्ट कीप डूइंग, लाइक जो तुम्हारा मन करता है, लाइक कुछ नया करने का मन करता है, जस्ट ट्राई इट आउट। कितने बार होता है कि वी जस्ट फील कि नहीं ये करना ठीक नहीं होगा, वी थिंक कि पीपल विल जज, या ये थॉट आ जाता है एक माइंड पे, तो इट्स लाइक कि ये नहीं सोच के ना, बिकॉज कितनी बार ऐसा चीज होता है कि जिस चीज के लिए हम लोग सोचते हैं ना कि पीपल विल जज, वही चीज तुम्हारा ज्यादा अच्छा बन जाता है कि या तुम्हें वर्कआउट करता है, वर्कआउट करा देता है। तो वही आई से कि मेरा एडवाइस यही रहेगा कि जस्ट फॉलो द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, मतलब किसी का बोलने पे या कुछ उससे प्रेशर पे आके वो मत करो जो तुम्हारा मन नहीं है, बिकॉज बाद में यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, तुम खुश नहीं रहोगे, कितने दिन तक तुम अपने आप को पुश कर करके वो काम कर लोगे। the thing which we discussed थोड़ा पहले कि you know you can't think of other people what they are saying, you have to do what you have to do, and when you love what you when you do what you love, I think the journey is incredible, you learn a lot of things. Pushing yourself is easy, the most important thing, pushing yourself every day is easy, you know, provided different things, but yeah, it's actually as compared it's easy when you do something that you love. Plus तुम्हारे पास अलग अलग आइडियाज डेली आते रहेगा, कहीं ना कहीं क्रिएटिव ब्लॉक रहेगा, बट you will always have that idea, and that you said कि try you know whatever you want to do and you don't do it, तुम सोचते रहता कि नहीं करना चाहिए and all that. I believe sometimes the things that you think that won't work out incredibly, and it comes out you know with wonderful colors, and it helps people, it helps you to be all happy, content, and you know कितना stress कितना चीज release होता है। ऐसे ही लोग बोलते नहीं है कि हाँ जब तुम हंसते हो तो कितना सारा चीज, कितना नेगेटिव एनर्जी निकल जाता है। इट मेक्स अस फील लाइक दैट व्हेन वी एक्चुअली वर्क ऑन व्हाट वी लव, वो जो थकावट है ना, थकावट नहीं लगता, वो बस ऐसा लगता है कि 10 मिनट का है, एक बार में फिर ठीक हो जाएगा, 10 मिनट का हमको रेस्ट दो, हम ठीक हो, एंड वी आर मोटिवेटेड टू वर्क। इट्स नॉट दैट कि हम लोग को पोस्ट करना ही पड़ता वहां पे। अब जैसे तुम बोला 5 ऑर्डर लेता है, अब जैसे तुम 3 ऑर्डर के बाद थक भी गया, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा तुम रेस्ट लेके यू विल बी लाइक हाँ करना है, करेगा तुम्हें, करना तो है, हमको आज पहुंचाना है। So that's how you are already motivated. मोटिवेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता उस जगह पे, because you're doing something that you love. हमको एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन तुमसे पूछना था कि how do you actually manage the whole timing thing? तुम कुछ ना कुछ तो अभी बता दिया कि yes you take the orders accordingly because you have had an experience like that कि जहाँ पे तुम डिलीवर नहीं कर पाया उतना। I really want to know कि तुम जो ये लाइफ अपना, obviously you have your own personal life and I'll call this as a professional life because you're earning from it. This is something, this is your business life and you're learning and earning and everything doing from here, and you need your own personal space, personal life, जहाँ पे तुम्हारा family, friends, everyone is there. तो उस चीज को तुम बैलेंस कैसे करता है? Because sometimes there might be orders इतना कि or you have to
also go to some place special with your friends Yeah. because it's a special day or something like that. तो उस चीज को तुम बैलेंस कैसे? सो सी मेरा सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला एक्सपीरियंस जो आया था ना, इट वॉज ड्यूरिंग दिवाली. ठीक है, तो दिवाली के टाइम बहुत मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था. दैट वॉज अ बिगेस्ट पुश मेरा पूरा जर्नी में जो मेरे को मिला कि मेरा इतना ऑर्डर्स आया. आई वॉज शॉक्ड. मतलब मम्मा वॉज लाइक कि मैंने डाला अपना एडिशन दिवाली का. मम्मा वॉज लाइक कि दिवाली पे कौन लेगा, आई डोंट थिंक कोई लेगा. तो आई वॉज ऑल्सो लाइक ठीक है चलो डालते हैं, लेट्स सी. तो जब रिस्पॉन्स आया लोगों का, आई वॉज क्रेजी. मतलब मैंने कितने सारे बॉक्सेस शिलोंग भेजे, कितने सारे मेरे बॉक्सेस गए तुम्हारा इधर लखनऊ भी गए थे, एंड गुवाहाटी के तो थे ही. यस, That's great. तो उस टाइम पे ऐसा होता था अराउंड 4 days मेरा ऐसा गया है बिकॉज मेरा फ्लैट है. सो मेरा घर पे आई वर्क, एक किचन है, वो एक हॉल है, उसी में नॉर्मल घर का खाना बनना, उसी में मेरा बनना, मतलब मेरा काम चलना. सो इट वॉज सच अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी. Plus Diwali. Special food already. मतलब I understand. मम्मा वाज लाइक कि एक बार के लिए अपना काम जॉइंट भूल में गई. रहता है. हाँ नहीं, जॉइंट में नहीं, मेरा मैं बाकी Kind फैमिली of. डिब्रूगढ़. बट क्या है कि दिवाली और हम लोग मारवाड़ी का घर में तो इतना काम रहता है कि वो पूछो मत. मतलब मम्मा वाज लाइक इरिटेटेड कि यार हम दिवाली का काम कर पाएगा भी कि नहीं. मतलब लिटरली ऐसा हुआ मेरा काम की वजह से मम्मी का कितना सफाई रुक गया. How मतलब did you पहली manage बार ऐसा the हुआ. whole thing? या तो ऑब्वियसली इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. मतलब बहुत बार मैं खुद इरिटेट हो जाती थी बिकॉज आई यूज टू लाइक स्लीप रात में 3 बजे 3:30 ऐसे करके काम करके, उसके बाद आई यूज टू वेक अप 6 o'clock. मतलब सिर्फ 3 घंटा आई यूज टू स्लीप बिकॉज बहुत ऑर्डर्स थे एंड आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग. बिकॉज जब घर का काम चल रहा हो उस बीच में आई कांट वर्क. सो आई हैव टू सी दैट टाइमिंग कि हाँ इस टाइम पे आई कैन वर्क. जैसे रात तक आई कैन वर्क बिकॉज उस टाइम पे सब अपना किचन का काम हो जाता है जो घर का नॉर्मली होता है. उसके बाद लेट नाइट आई कैन डू. तो मेरा वो चलता था कंटिन्यूसली 4 days. एंड उस बीच में ऑब्वियसली सारे लाइक पैकेजिंग के काम होते थे, कितने कुछ होते थे. तो मेरी मम्मी ने, फिर जो हमारे घर में जो 1-2 जो हाउस होल्ड मेड्स है, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया पैकेजिंग के टाइम. बिकॉज इतने सारे एक साथ होना, लाइक आई यूज्ड टू प्रिपेयर एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी इन पैकिंग. Family big help, thanks the to- people yeah. around the house, yeah, that is Yeah. something else. वो मिल जाता है तो हाँ Yes. काफी easy हो तो जाता उस टाइम पे मैनेज करना डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए. आई नॉट से कि हाँ एकदम मैंने इजीली हैंडल कर लिया सब कुछ, ऐसा नहीं था. डिफिकल्ट था बट इट्स जस्ट दैट कि मेरे को वो करने में अच्छा लगता है इसलिए मैं कर पाई. यहीं पे वो बात आ जाता है. अगर आज वही वो काम मेरे को पसंद नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती. मैं रो रो के करती. बट वही एक था कि हाँ मैं थक भी रही थी तो आई वाज लाइक ठीक है लेट्स टेक अ ब्रेक और थोड़ा खुद को कूल डाउन करके या शांति से. देन अगेन आई यूज्ड टू गेट बैक टू माय वर्क. वो भी खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कि यार ऑर्डर्स देना है इसलिए आई एम डूइंग. तो ये एक चीज़ था, मैनेज करना पड़ता है जैसे मैंने मैनेज किया. बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मेरे को टाइमिंग्स देखना पड़ता है कि हाँ इस टाइमिंग पे मैं जा सकती हूँ किचन में अपना बनाने के लिए कि इस टाइम कोई नहीं है. तो वो एक हो जाता है और ये चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ता है बेसिकली. अभी तक मैं वही कर रही हूँ, चाहे मेरा ऑर्डर ज़्यादा हो या कम हो. What you are actually saying is कि you need to cool off also from time to time, and you need to create that own space if you are working Yes. at home. कहीं ना कहीं से जब घर पे स्टार्ट होता है तो obviously the thing that you said कि काम रहता है, house plus इधर तुम्हारा खुद का काम, it goes hand in hand sometimes. Hand in hand. Sometimes तुमको back off करना पड़ता है and घर का काम के बाद you have to do. You have to. I believe तुम्हारा एक्सपीरियंस के कारण तुम अभी मैनेज कर पा रहे हो. स्टार्टिंग में तो True, तुम्हारे लिए भी काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा. हाँ, And that then my internship धीरे-धीरे. experience. Yeah.
And I really like the fact कि तुम जो को ये बोला ना, like अभी cool off period is also important. वो cooling off जब तक नहीं होगा तब तक Yeah. वो मजा भी नहीं आएगा. अब Exactly. ज्यादा हेक्टिक कर लेगा तो फिर हाँ. ज्यादा स्ट्रेस Exactly. लेने लग जाएगा. ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो फिर वो लव वाला फैक्टर चले जाता है कभी. चले जाते हैं रिस्क और नहीं फिर ले वो सकते. तुम्हारे काम पे असर पड़ता है. लाइक यू वोंट बी that's एबल what. टू डू इट परफेक्टली बिकॉज अल्टीमेटली माई मोटिव इज कि मैं जिसको भी दे रही हूँ वो बॉक्सेस वो अच्छे से जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसमें अपना 90% भी दूँ. मेरे को हाँ. देना है 100%. तो उसके लिए आई नीड कि मेरा माइंड कूल हो जाए. whenever I used to feel कि हाँ अभी I am not in that situation, अभी मेरे को थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत है, so I used to take that time कि ठीक है थोड़ा डिले हो जाएगा, it's okay but I have to take my time कि थोड़ा I have to rest. तो उस बीच में मेरे को जो पर्सनल कुछ भी करना होता था, like I used to talk to my friends और maybe I used to वॉच समथिंग और कुछ खा लेती थी जो मन करता था या थोड़ा रेस्ट कर लेती थी. दैट वॉज माई पर्सनल टाइम जो साथ साथ में थोड़ा सा ले लेती थी. एंड देन अगेन आई यूज्ड टू गेट बैक टू माई वर्क. सो उस टाइम इट वॉज लाइक ना, हाँ, तो उस टाइम ऐसा था कि सब मेरे लोकल फ्रेंड्स को भी पता था कि अभी तो आई एम टोटली बिजी. सो आई नेवर यूज्ड टू गो आउट बिकॉज टाइम ही नहीं होता था. बट जैसे ही सब खत्म हुआ तब मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया. तब दिवाली पे पूरा घूमी हूँ. पूरा एकदम बढ़िया से. So I have one last question from you, Yes. which I am willing to ask everyone that I'm bringing this season to talk. Yeah. देखो, जर्नी ऐसा चीज है जहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलता है. एंड एक स्कूल लाइफ का जर्नी था, एक कॉलेज लाइफ का जर्नी था. फैमिली इज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर. 2020 वाज अनदर जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. 2020 ऐसा जर्नी था जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था फॉर एनीवन. एंड what I really want to know from you is that what kind of difference do you see when you started the Infused table and right now when you are actually here, where you are happy, you are content? What kind of differences do you see in yourself? So firstly तो एक तो तुम खुद ही बना दिया कि I am, बता ही दिया कि I am matured enough. So ये तो I also feel because yes, 3 years I was in Calcutta. उस टाइम पे भी I learned a lot of things. बाहर जाके you get an exposure, you learn a lot of things. But coming to this point, when I started my own business, firstly बहुत responsibilities आ गया था. ठीक है कि मैंने सीखी कि कैसे आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग, कि कैसे मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको कैसे आई हैव टू हैंडल. बिकॉज आई नेवर न्यू. मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ लाइक जब मैंने अपना बिजनेस टर्म्स में मैं आई. पहले तो आई यूज्ड टू डू फॉर रेसिपी डेवलपमेंट ये सब, तो दैट वाज तब तक इट वाज फाइन, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. बट जब बिजनेस पे आई मैं तब it was a whole new experience for me. मतलब I did not knew कि है ना प्राइस सेटअप किस तरह से क्या किया जाए, कि है ना मतलब जैसे मेरे को पहले मार्केट को देखना था कि मार्केट कैसा है, वो कितना इन्वेस्ट करती है, हमारा जो गुवाहाटी का मार्केट है वो क्या है, और मतलब एवरीथिंग बहुत कुछ था मेरे माइंड में. मेरे को सही से नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए. तो आई टुक हेल्प. पापा से भी मैंने बात किया बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिजनेस में. तो आई यूज्ड टू टॉक टू हिम ऑल्सो, ही यूज्ड टू ऑल्सो सजेस्ट मी. और फिर ये सब चीज़ पे ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आया मेरे ऊपर. धीरे धीरे करके मतलब उसको मैंने सीखा कि किस तरह से हैंडल करना है, जो मेरे को पहले नहीं आता था. जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया उसके बाद ही मुझे ये सब आया. और इसके साथ साथ ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं और रिस्पॉन्सिबल हुई बिकॉज आई यूज्ड टू गो टू माई फादर्स शॉप. मतलब वहाँ जाके मतलब हमारा मेडिसिन का काम है. सो उस टाइम पे आई यूज्ड टू हेल्प हिम. मतलब तब मैंने उन्हें भी बहुत हेल्प किया अराउंड 4 to 5 months. तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ लाइक कि तुम है तो लाइक आई कैन डू, कि अगर कभी मेरे को नहीं आना हो शॉप पे तो यू कैन हैंडल इट. सो इट वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी कि हाँ पापा को इतना ट्रस्ट है मेरे पे कि उन्होंने इतना बड़ा बात बोल दिया. जनरली ही डज नॉट स्पीक अ वर्ड. ऐसा तारीफ करेंगे ही नहीं, बहुत रेयरली. Last year learning here,
वहाँ पे Yeah. भी तुम वो कर रहे हैं, ग्रेट। तो it was like कि it was a whole a big experience for me, and मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब after coming to this the infused table, बहुत कुछ like जो पहले मैं नहीं थी, जो चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था, जैसे Everything positive. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से मतलब खुद को फीडबैक, हाँ फीडबैक, ये सब कुछ, मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स है। जैसे अभी आई एम कॉन्फिडेंट इनफ ऑल्सो, पहले कॉन्फिडेंस भी मेरा लो था कि नहीं, हाँ कि स्टार्ट करने से पहले लगता था कि नहीं कर पाऊंगी, या मेरे से नहीं होगा, मेरे से और भी अच्छे लोग हैं जो अच्छा करते हैं। बट अब जब आई हैव स्टार्टेड, तब लोग के फीडबैक से और जो भी मेरे को मिलता है सामने से, उससे मेरे को और कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, आई कैन ऑल्सो डू, और कोई और भी कर सकता है। जो ऐसा सोचता है ना जो नहीं कर सकता है, वो कर सकते हैं। तो यू ये हैव एक टू चीज, पुट योर हार्ट एंड सोल, ये हम Correct. बिलीव करता है। हम्म, अगर तुम कुछ ऐसा कर भी रहा है, you have started something of your own, or even if you're doing a job, or you are running the business of your father, or anything in life, you're studying, you're exercising, anything, you have to put your whole heart and soul, तब उसका कोई Correct. फ्रूटफुल नेचर निकलता है, वरना तो हाँ निकलेगा। वरना नहीं। And like you said, That's right. responsibility तुम सीखा है, and I said the same thing, that you have become mature. I can see that. I can actually see कि you have become wiser, and you are अब तुम बहुत ज्यादा खुल भी गए। तुम जितना confined पहले रहता था, I you know. have opened up. So I believe it's an incredible thing that I could have you in the podcast, and to understand your journey, the bits and pieces of it, how it started, where you are right now, and where you want to be in the future. Everything. It was amazing. Thank you so Thank much you. Muskan, for being in Perception 101. And I would really, I really wish you all the best for Thank everything. you. And I hope you achieve a lot of things. Thank you so much. Thank you so much. Thanks to you. It was all because of you that you have given me this platform. And मैंने इतना कुछ बोला है, अब मेरा मुंह दुख गया बोलते। But it was amazing. बहुत मजा आया. Really thank you so much, and all the best to you. I really want कि you grow, मतलब जहाँ तक भी तुम्हें जाना है वहाँ तक जाओ और ऊपर जाओ। Thank you so much. तुम्हारे मुंह में एक केक खा लेना, घी शक्कर हम बोल रहे हैं। And yeah, so और thank you तुम्हारा so हैम much. पर पहुँच जाएगा, don't worry. Okay, please do so. हम एड्रेस भेज देगा, तुम्हारे पास होगा नहीं होगा पता नहीं। Okay. So yeah, thank you so much, Muskan, for being here, and it was incredible. So And guys, please go and check out the Infused Table in Instagram. If you have any orders, please let her know. If you have any feedback, let her know. And thank you so much, Muskan, again Thank for you being once with again. me, being with us, and sharing your story. Thank you so much. So guys, if you enjoyed this episode, do not forget to like and comment. Do share this episode with as many people as you can. And before you go, please subscribe to my channel. Thank you for staying tuned. Next episode, next Saturday.